So that means what happens? There will be one strand where the DNA synthesis, it will be takes place in a continuous manner. Now, what will be happens to the opposite strand? What will be happen to this opposite strand? Now here, assume it. Let me remove this area so it will be very clear for you. Now remind it. Here the bonds are present. Okay, here the bonds are present. So now here assume it. Again, your helicase enzyme is already present because leading strand formation is over. Now for the formation of the opposite strand, let's come back to the original situation, right? So we have already came back to the original situation. Now here also we need the requirement of the RNA polymerase. अब ये आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो कहां पे ये आरएनए पॉलीमरेज सिट होगा और आरएनए पॉलीमरेज कहां पे बैठेगा? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज इट कैन बाइंड्स ओनली इन 3 प्राइम एंड. आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड्स ओनली इन 3 प्राइम एंड. बट इस एरिया में देखो अभी भी कोई 3 प्राइम पोलरिटी नहीं है, 3 प्राइम एंड नहीं है ना. तो इसलिए आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा कहां पे? तो आरएनए पॉलीमरेज को बैठने के लिए 3 प्राइम एंड चाहिए. बट 3 प्राइम एंड में आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा कैसे? क्योंकि बैठने के लिए यहाँ पे अभी भी बॉन्ड ब्रेक हुआ नहीं है. सो दैट्स व्हाई द आरएनए पॉलीमरेज विल sit in this area of the opposite strand. In this area of the opposite strand, the RNA polymerase will sit, and the polarity it will be again 5 prime end to 3 prime end. And you are already knowing that in the 3 prime end there will be one free OH group, and once the free OH group is there, so what will be happen? The DNA polymerase can act upon. Okay, so once this OH group is free, so the DNA polymerase आराम से इस OH ग्रुप के साथ बाइंड हो जाएगा. जैसे DNA polymerase इसके ऊपर बाइंड होगा, सो सेम वे में जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर में जो सीक्वेंस है, that sequence again it will be read out by the DNA polymerase, and accordingly that there will be addition of the complementary DNA base pair. So what does it means? So चलो यहाँ पे बना लेते हैं डीएनए का कुछ सीक्वेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर में. सो हियर assume it is your A T G C A T A G T C. Okay, so here it's your sequence A T G C A G T C, right? Now what happens with this? Already the DNA polymerase came and react with OH group. तो OH ग्रुप के साथ ऑलरेडी ये रिएक्ट कर लिया. जैसे OH ग्रुप के साथ ऑलरेडी रिएक्ट कर लिया, सो अकॉर्डिंगली देयर विल बी addition of the complementary base pair. There will be addition of the complementary base pair accordingly to the sequence that is present over this template strand. इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर में जो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है उसके हिसाब में ही जो न्यू न्यूक्लियोटाइड आएगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड अपोजिट न्यूक्लियोटाइड आएगा. इस न्यू न्यूक्लियोटाइड को कौन लाएगा? इट कैन बी ब्रॉट डाउन बाय द डीएनए पॉलीमरेज ओनली. तो यहाँ पे ऑलरेडी ए है, तो ए के ऑपोजिट में क्या है? यहाँ पे है टी. टी है तो यहाँ पे क्या है? ए. जी है तो क्या यहाँ पे क्या चाहिए? सी. सी है तो यहाँ पे क्या चाहिए? जी. ए है तो यहाँ पे क्या चाहिए? टी. जी है तो क्या चाहिए यहाँ पे? सी. टी है तो क्या चाहिए मेरे पास? ए. और सी में तो मेरे पास चाहिए जी. तो ये जो न्यू न्यूक्लियोटाइड आया इसको कौन लाया? इट इज ब्रॉट डाउन बाय द डीएनए पॉलीमरेज ओनली. तो जैसे ही मेरा ऑपोजिट डीएनए स्ट्रैंड और न्यूक्लियोटाइड आ गया, तो बिटवीन द टेम्पलेट स्ट्रैंड, this is our template strand and this is our newly formed DNA, between them there will be again pairing. Between them there will be again pairing. So जैसे pairing मेरा complete हो जाएगा तो देखो मेरे पास already मेरे पास ऑलरेडी क्या है? जैसे मेरा पास पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा एक डीएनए फॉर्मेशन भी मेरे लिए कंप्लीट हो जाएगा. डीएनए फॉर्मेशन भी मेरे लिए कंप्लीट हो जाएगा. लेट मी राइट इट. ओके, so here there will be one A, there will be one G, there will be one G, there will be one C. Okay, let me complete it. So G, this is your
C, this is your A, this is your G. And now between them, what will be happen? There will be pairing. There will be pairing. So here the T, it will be bind with A, C will be bind with G, A will be bind with T, and the G will be bind with C. तो देखो अब मेरे पास एक न्यू डीएनए फिर से दोबारा फॉर्मेशन हो गया इसी एरिया में, है ना. बट व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? अब यहाँ पे देखो, जैसे डीएनए जो स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड किस कहां पे खुल रहा है? डीएनए स्ट्रैंड इट्स एक्चुअली ओपनिंग इन दिस एरिया. इन दिस एरिया डीएनए इज ओपनिंग, राइट? तो डीएनए का ओपनिंग यहां पे हो रहा है ना. तो इसके मतलब क्या है? आई वांट टू से दैट ओवर हियर, एज द डीएनए स्ट्रैंड ओपनिंग इन दिस रीजन, then DNA it will be breaks or helicase enzymes will break this hydrogen bond from this way. That means in this way. जब भी मेरा एक न्यू डीएनए बनेगा तो न्यू डीएनए जो टेम्पलेट स्ट्रैंड ओपन होगा, न्यू डीएनए टेम्पलेट ओपन होगा इसी एरिया में, राइट? बट हम लोग जानते हैं क्या है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड फॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. अब यहाँ इस एरिया में आने के बाद न्यू फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए इट विल नॉट टेक्स प्लेस, बिकॉज इसके बाद क्या है, मेरे पास कोई भी टेम्पलेट स्टैंड मेरे पास कुछ पड़ा हुआ नहीं है. तो मेरे पास टेम्पलेट स्टैंड नहीं रहेगा तो मेरे पास कैसे न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होगा इस एरिया में, राइट? ऑपोजिट इस कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में हम लोग क्या देख रहे थे, न्यू डीएनए स्ट्रैंड जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डीएनए स्ट्रैंड का ओपनिंग भी हो रहा है. तो इसके मतलब इसका न्यू डीएनए स्ट्रैंड का जो रास्ता है, इसका सामने में ऑलवेज टेम्पलेट स्ट्रैंड इसको कंटिन्यूअसली मिल रहा था. बट इसी स्ट्रैंड में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है अप टू दिस एरिया इट्स ओके, बट आफ्टर दिस एरिया देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड. एंड इफ देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, नाउ हाउ द न्यू डीएनए विल फॉर्म? तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्योंकि न्यू डीएनए फॉर्मेशन जो हो रहा है मेरा इस एरिया में हुआ है, न्यू डीएनए ओपनिंग यहाँ पे मेरा हो गया है. जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का ओपनिंग हुआ, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का ओपनिंग कहाँ पे हुआ? टेम्पलेट स्ट्रैंड का ओपनिंग मेरा यहाँ पे हुआ है. अब पीछे की तरफ से ही तो मूव नहीं सकते, तो मेरे यहाँ पे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है, सपोज हम लोग मान लेते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस मेरे पास है यहाँ पे ए टी जी सी, ए टी जी सी. ओके, हम यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास सीक्वेंस ऐसा है. तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को मेरे पास अगेन हमको रीड करना पड़ेगा. मेरे पास ये जो टेम्पलेट स्टैंड, इस टेम्पलेट स्टैंड को मेरे पास अगेन हमको इसको रीड करना पड़ेगा. अब रीडिंग के लिए मेरा क्या चाहिए? मेरे पास चाहिए डीएनए पॉलीमरेज. अब डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली यहाँ पे बैठ नहीं सकता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये अकेले एक्टिवेट तभी होगा जब इसको फ्री ओएच ग्रुप मिलेगा. तो फ्री ओएच ग्रुप कौन लाएगा? तो फ्री ओएच ग्रुप लाएगा. अगेन वी नो दैट द फ्री ओएच ग्रुप कौन लाता है? फ्री ओएच ग्रुप इट इज ब्रिंग डाउन बाय योर आरएनए प्राइमर. अगेन यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास आरएनए प्राइमर बैठेगा. यहाँ पे आरएनए प्राइमर का पोलैरिटी क्या है? 5 प्राइम एंड. यहाँ पे मेरा क्या है पोलैरिटी? 3 प्राइम एंड. और इसके साथ ये क्या लाया? इसके साथ ये लाया OH ग्रुप. जैसे यहाँ पे OH ग्रुप आरएनए प्राइमर आया और लाया, तो फिर से क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे प्रेजेंट है ऑलरेडी. डीएनए पॉलीमरेज अगेन क्या करेगा? It will again brings the new nucleotide. अब ये न्यू जो न्यूक्लियोटाइड लाएगा, that nucleotide it will sit over here according to the template strand. तो मेरे पास यहाँ पे G है, तो यहाँ पे क्या लाएगा? यहाँ पे लाएगा C. यहाँ पे C है तो मेरे पास लाएगा G. यहाँ पे A है तो यहाँ पे आएगा T. यहाँ पे T है तो यहाँ पे आएगा A. यहाँ पे आएगा C. यहाँ पे आएगा G. तो जैसे इतना सारा न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो गया ऑलरेडी, तो न्यू न्यूक्लियोटाइड के जैसे एडिशन हो जाएगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली बिटवीन देम देयर विल बी पेयरिंग. तो इसके बीच में क्या होगा? ऑब्वियसली पेयरिंग होगा. तो ये यहाँ पे देखो न्यू डीएनए का अगेन फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ? इस एरिया में मेरा 3 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए प्राइमर था. तो यहाँ पे मेरा जो न्यू डीएनए फॉर्मेशन बना, तो इसका भी पोलैरिटी होगा 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड. तो इसके मतलब मेरा ये रूल फॉलो हो रहा है. यहाँ पे भी जो न्यू डीएनए फॉर्मेशन बना था उसका भी पोलैरिटी था 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड. तो हमेशा याद रखना, जब भी न्यू डीएनए फॉर्मेशन करना है तो उसका पोलैरिटी हमेशा होगा 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड डायरेक्शन ओनली. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे इसी स्ट्रैंड पे दो आरएनए प्राइमर ऑलरेडी आ चुका है.
तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, डीएनए न्यू डीएनए सिंथेसिस तो हो रहा है, यहाँ पे एक न्यू डीएनए का सिंथेसिस हुआ, फिर यहाँ पे भी मेरे पास एक न्यू डीएनए फिर से दोबारा बन गया, और मेरे पास ऑलरेडी दोबारा बन चुका है हम लोग के पास, दैट इज दिस वन. तो here also the new DNA synthesis takes place, but in this strand what is the problem, in this strand the DNA synthesis takes place not in a continuous manner. देखो रुक रुक के DNA synthesis हो रहा है, बीच में गैप हो रहा है, फिर से कंटिन्यू हो रहा है, बीच में गैप हो रहा है, फिर से कंटिन्यू हो रहा है. देखो यहाँ पे मेरे पास फिर से दोबारा एक, यहाँ पे मेरे पास एक डीएनए बना, यहाँ पे मेरे पास एक डीएनए बना, और बीच में कुछ गैप रह गया, दैट इज योर आरएनए प्राइमर. तो इसी स्ट्रैंड पे क्या हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस इट इज टेकिंग प्लेस, बट इट्स नॉट टेकिंग प्लेस इन अ कंटिन्यूअस मैनर. सो हाउ डज इट टेक्स प्लेस, it takes place in your discontinuous manner. So that's why this strand we can call them as your discontinuous strand, or also we can call it as your lagging strand. We can also call it as your lagging strand. So why can we call it as a lagging strand, because over here lag means ruk ruk ke hona, means here the DNA synthesis takes place in your little bit interruption is there, between the interruption or discontinuation is there. So that's why here it's called as your leading strand or your lagging strand. So यहाँ पे हम लोग क्या जाने, यहाँ पे हम लोग जाने क्या, which one is your leading strand and why we are calling it as your leading strand, and which one is your lagging strand and why it is called so, right? So this is the all about your elongation process. अब ये elongation process जो हुआ यहाँ पे अभी पूरा तक complete नहीं हुआ है, तो मेरे पास क्यों complete नहीं हुआ है, इसको भी हमको अच्छे से समझना पड़ेगा. तो इसके लिए मेरे पास क्या चाहिए, यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा पोर्शन पेंडिंग है. पेंडिंग क्या है, यहाँ पे मेरे पास अभी भी पीछे की तरफ हम लोग चलते हैं, मेरे पास अभी यहाँ पे जो गैप बना, कहाँ पे गैप बना है, देखो यहाँ पे मेरे पास जो प्राइमर, यहाँ पे इसी लैगिंग स्टैंड के ऊपर में एक प्राइमर बैठा है, यहाँ पे एक प्राइमर बैठा है, यहाँ पे भी एक प्राइमर बैठा है, यहाँ पे भी मेरे पास एक प्राइमर बैठा है. तो जितना भी प्राइमर है तो उस प्राइमर को मेरे हमको हटाना पड़ेगा. तो वो प्राइमर को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो भी हमको जानना है. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल वे में हम लोग इसको अच्छे से इरेज कर लेते हैं. इरेज करने के बाद हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं. तो मेरे पास यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर में जो भी लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड है, तो जो भी लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड है यहाँ पे मेरे पास, जो स्पेशली लैगिंग स्ट्रैंड में देखोगे, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है, ये एक एक लैगिंग स्ट्रैंड में क्या हुआ, जो न्यू डीएनए बना, एक एक न्यू डीएनए शॉर्ट फ्रैगमेंट में बना है ना. तो इसलिए जितना भी ये न्यू डीएनए है पोर्शन है, either this portion or either this portion, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट. सो हियर आल्सो इट इज योर ओकाज़ाकी, here it's also your Okazaki fragment. So as here it's also Okazaki fragment, here also Okazaki fragment. तो इसको Okazaki fragment क्यों बोल रहे? This is the name according to the biologist who was first discover it. So that's why there was one biologist whose name was Okazaki. So according to his name, this fragment is also called as your Okazaki fragment. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, जब लास्ट टर्मिनेशन के टाइम में आएगा, तो टर्मिनेशन के टाइम में क्या होगा, जो भी आरएनए के ऊपर और जो भी मेरे टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर में जितना भी आरएनए प्राइमर है, ये आरएनए प्राइमर क्या होगा, आरएनए प्राइमर हट जाएगा. आरएनए प्राइमर विल बी रिमूव्ड. सो इन दिस एरिया आल्सो and in the template stand in this area also the RNA primer will be removed. So देखो ये सब एरिया जहां पे है मेरे पास अभी ब्लैंक हो गया. So who is removing this your RNA primer? So this RNA primer in this area, whatever the RNA primer was there, here was the RNA primer, here there was your RNA primer, here also there was your RNA primer, here also there was your RNA primer. So जितना भी सारा RNA primer था, ये RNA primer कौन हटाया यहाँ से? So for that one we need one enzyme that is called as your exonuclease enzyme. We need one enzyme which one is called as your exonuclease enzyme. तो exonuclease enzyme क्या है?
एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पे आया और आने के बाद यहाँ पे जितना भी आरएनए प्राइमर है सारे आरएनए प्राइमर को डाइजेस्ट कर लिया, राइट? सो द ऑल ऑफ द आरएनए प्राइमर it will be removed by the exonuclease enzyme. So who helps in the removal of the RNA primer? RNA primer removed by enzyme, it's called as your exonuclease enzyme. Okay, it's called as your exonuclease enzyme. So exonuclease enzyme किया क्या, सारे RNA प्राइमर को हटा दिया. अब RNA प्राइमर इस एरिया से हट जाएगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है. अभी जो गैप क्रिएट हुआ है तो इस गैप को भी हमको फिल करना पड़ेगा. तो कैसे फिल होगा, इसके लिए फिर से मेरे पास चाहिए, हमको चाहिए डीएनए पॉलीमरेज. अगेन मेरे पास क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज. तो जैसे डीएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज अगेन विल कम and DNA polymerase will read the sequence of template strand that is present over here, and accordingly that it will form a new short fragment of DNA here also, and here also it will form the short fragments of DNA, and here also it will form the short fragments of the DNA, right? तो जितना भी गैप था सारे गैप में जो भी टेम्पलेट स्टैंड, अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट स्टैंड देयर विल बी एडिशन ऑफ द न्यू न्यूक्लियोटाइड बाय द डीएनए पॉलीमरेज. सो डीएनए पॉलीमरेज बाद में क्या किया, जो भी गैप था सारे गैप के अंदर में जो भी न्यू न्यूक्लियोटाइड है सारे न्यूक्लियोटाइड को एडिशन किया, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड का एडिशन किया, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड एडिशन करके इस गैप को फिल कर दिया. अब जैसे गैप फिल हो जाएगा, फिर देखो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, लेट मी मार्क इट ओवर हियर प्रॉपर्ली, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. सो इन दिस एरिया दिस इज ऑल्सो शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, दिस इज ऑल्सो शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, क्योंकि ये जो दो डीएनए है, दो डीएनए के बीच में अभी थोड़ा सा गैप बना हुआ है, थोड़ा सा गैप बना हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा गैप बना हुआ है. अब क्या जरूरत है, मेरा इस गैप को ज्वाइन करने का जरूरत है. आप हम ज्वाइन करेंगे और फिक्स करेंगे, तो फिक्स करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, मेरे पास कुछ ग्लू टाइप्स का मटेरियल होना चाहिए और एडहेसिव टाइप्स का मटेरियल होना चाहिए. तो यहाँ पे तो हम फेविकॉल या फेविक्विक लगा नहीं सकते. सो दैट्स व्हाई हियर वी नीड वन molecular adhesive. Okay, here we need one molecular adhesive. What is it, molecular adhesive? It's called as your DNA ligase. It's called as your DNA ligase enzyme. So last में क्या होगा, DNA ligase enzyme यहाँ पे आया. DNA ligase enzyme जैसे यहाँ पे आया, आने के बाद सारे जो गैप है इस गैप को फिल कर देगा और गैप को ज्वाइन कर देगा. सो इसलिए क्या हो जाएगा, जैसे ये डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज आएगा, सारे यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगा. जैसे सारे ज्वाइनिंग हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरे पास एक डीएनए स्ट्रैंड से दो डीएनए फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट? So you are already knowing that what is the basic rule of replication. From the one parental DNA there will be formation of two daughter DNA, and this DNA replication, you know that it is also called as your semi-conservative mode of replication. Why it is called as your semi-conservative? Why it's called as your semi-conservative? Some reason is there, because if you look into this both your newly formed DNA, one strand is reddish, so the reddish one it's indicating it's your parental strand, and the blackish one is indicating it is your daughter or newly synthesized strand. So here also it's your parental strand, here also it is your newly synthesized or the daughter strand. So हमेशा जो भी daughter DNA बनेगा, so daughter DNA के अंदर में एक पेरेंटल स्ट्रैंड हमेशा प्रेजेंट रहेगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड हमेशा प्रेजेंट रहेगा. सो एज in the newly synthesized strand there is a presence of obviously one parental strand. Due to that one, this DNA replication mode it's called as your semi conservative mode of replication. अब हम लोग लास्ट की तरफ आ चुके हैं. लास्ट में एक मैकेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म.
सो व्हाट इज दिस प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म? जब हम लोग देखें यहाँ पे हर जगह में जहां पे ए टी जी सी पैरेंटल स्ट्रैंड में है, तो ऑपोजिट स्ट्रैंड में मेरा क्या होना चाहिए? यहाँ पे मेरे पास सपोज सोचे यहाँ पे मेरा टी है, यहाँ पे मेरा जी है, यहाँ पे मेरा जी है और सी है, और यहाँ पे मेरा जी है, राइट? एज्यूम इट, जस्ट कंसिडर इट। सो बट मेरे पास सिंपल लॉजिक है हम लोग के पास, ए ऑलवेज मेक्स डबल बॉन्ड विथ थायमीन and the guanine always makes triple bond with cytosine. But यहाँ पे जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा, either in the leading strand, either in the lagging your lagging strand, it's not a matter. कभी कभी क्या होता है डीएनए के अंदर में कुछ फॉल्टी आ जाता है। फॉल्टी क्या है? यहाँ पे फॉल्टी मेरे नजर के सामने दिख रहा है, जैसे मेरा यहाँ पे टी बाइंडिंग होना चाहिए ए के साथ, बट यहाँ पे बाइंडिंग हो गया है जी के साथ। दैट मीन्स इट्स योर फॉल्स, इट्स नॉट अलाउड, because in your molecular level the little changes it can brings new mutation, which one you will be learning in your sickle cell anemia. If there is any change in the base pair, so it can be also lead some huge changes in the phenotype of the organism, right? So in it is not possible. That's why there will be one proofreading mechanism. So due to the proofreading mechanisms किसके ऊपर में होगा? मेरे लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर में भी proofreading mechanism होगा, और मेरे लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर में भी मेरा proofreading mechanism होगा। और proofreading mechanism हमको क्यों चाहिए? It is beneficial for the removal of the faulty or unwanted sequence or unwanted nucleotide. तो यहाँ पे मेरा जो G है that is unwanted, यहाँ पे इसका प्रेजेंस टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे किसका कौन चाहिए? यहाँ पे चाहिए ए चाहिए, एडेनिन चाहिए। तो ये जी क्या होगा? जी रिमूव्ड हो जाएगा। जी कैसे रिमूव्ड होगा? जी का रिमूवल के लिए मेरे पास चाहिए this your proofreading mechanism. By the proofreading mechanisms, the G it will be thrown out from this system. G it will be thrown out from this system, and here there will be addition of your one adenine by the help of your DNA polymerase. So the proofreading mechanisms का significance क्या है? It helps in the removal of the unwanted nucleotide. If the unwanted nucleotide is there, that unwanted nucleotide it will be removed, and what is the subsequent prominent nucleotide it will be there, it will be brought down by the DNA polymerase. DNA polymerase एक nucleotide के addition कर सकता है, प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म नहीं कर सकता है। प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म मतलब क्या है? यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में मदद करेगा। जैसे हम लोग बड़ा बड़ा फैक्ट्री में देखते हैं, कभी कुछ मटेरियल्स में फॉल्ट आ गया, तो वहां पे एक लेजर है, तो लेजर उसको आराम से डिटेक्ट कर लेता है, इट इज फॉल्ट, सो दैट मटेरियल इट विल नॉट बी पैक्ड, राइट? सो सेम थिंग ये आल्सो इट्स एप्लीकेबल। सो यहाँ पे मान सकते हो प्रूफ रीडिंग के मैकेनिज्म है, इट्स अ चेकिंग ऑफ क्वालिटी, राइट? अब ये जो डिटेल प्रोसेस हुआ मेरे पास जो डीएनए रेप्लिकेशन का, ये डीएनए रेप्लिकेशन का डिटेल प्रोसेस हम लोग एक छोटा सा क्लिपिंग के जरिए भी इसको हम लोग अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। सो कम हियर, लेट्स सी द टोटल डिटेल प्रोसेस ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। सो यहाँ पे हम मेरा क्या देख रहे हैं? डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है, तो डीएनए स्ट्रैंड में मेरे पास यहाँ पे जो डीएनए स्ट्रैंड का हेलिक्स ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद आराम से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जो भी यहाँ पे C है तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे G है, यहाँ पे मेरे पास A है तो ऑलरेडी मेरे पास T है, मतलब ऑपोजिट बेस पेयरिंग है यहाँ, है ना? तो जैसे मेरे पास ऑपोजिट बेस पेयरिंग होगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या चाहिए? यहाँ पे मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। तो दो स्ट्रैंड जो होगा यहाँ पे 5 प्राइम एंड यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरा 3 प्राइम एंड आया, राइट? फिर दूसरा स्ट्रैंड में मेरा यहाँ पे 5 प्राइम एंड आया, यहाँ पे मेरा 3 प्राइम एंड आया। तो दोनों स्ट्रैंड जस्ट हैविंग अ ऑपोजिट पोलैरिटी। जैसे ऑपोजिट पोलैरिटी स्ट्रैंड आया, दोनों स्ट्रैंड को कौन सेपरेट कर दिया? दैट इज डन बाय योर हेलिकेज एंजाइम सेपरेट्स द बोथ स्ट्रैंड, and due to that one there is a formation of your replication fork. Okay, once the replication forks opens this DNA strand, now this separated strand is open. Now यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम आया, प्राइमेज एंजाइम जैसे यहाँ पे बैठेगा तो किसका एडिशन होगा? आरएनए प्राइमर का एडिशन हो गया। आरएनए प्राइमर एडेड हो चुका है इस एरिया में, दिस इज योर आरएनए प्राइमर। once the RNA primer is present over here, now the RNA primer brings the free OH group, and जैसे यहाँ पे OH group आया तो यहाँ पे DNA polymerase भी आ गया, और DNA polymerase new nucleobases or the DNA bases it will be also bring down by your
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो सारे देखो धीरे धीरे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आगे बढ़ रहा है और न्यू डीएनए का सिंथेसिस कंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है एंड अल्टीमेटली it will be leads to the formation of your leading strand over here. Okay, it's very easy. Now opposite strand में मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे मेरा एक लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। तो लैगिंग स्ट्रैंड मेरे पास क्यों बना है यहाँ पे, क्योंकि बना यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे आरएनए प्राइमर बना था और यहाँ पे फ्रैगमेंट्स बना है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास आरएनए प्राइमर आया, आरएनए प्राइमर जैसे आया ये फ्री ओएच ग्रुप लाया, जैसे फ्री ओएच ग्रुप लाया तो डीएनए पॉलीमरेज क्या किया, यहाँ पे फिर से डीएनए पॉलीमरेज दोबारा आया और यहाँ पे जो टेम्परेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस है, ये टेम्परेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस आराम से इसको रीड किया, रीड करने के बाद एक न्यू न्यूक्लियोटाइड फिर से बनाया और डीएनए सिंथेसिस और डीएनए चेन फिर से दोबारा बना। फिर देखो यहाँ पे आरएनए प्राइमर फिर से दोबारा ऐड हुआ, फिर ऐड होने के बाद डीएनए पॉलीमरेज फिर से दोबारा ऐड हुआ यहाँ पे, फिर एक न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया। तो अब तुम इस स्ट्रैंड में देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आया, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स आके सारे जो प्राइमर है प्राइमर को रिमूव कर दिया। अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके फिर से जो टेम्परेट स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है अकॉर्डिंगली दैट देयर विल बी एडिशन ऑफ द न्यू न्यूक्लियोटाइड। अब ये सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे चला प्रूफ रीडिंग और योर डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो जितना भी गैप बना था दैट गैप ऑल विल बी सील्ड बाय योर डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब लाइगेज एंजाइम सारे गैप को फिल कर दिया, जैसे सारे गैप को फिल कर दिया तो देखो फिर से दोबारा डॉटर डीएनए बन गया है। ओके, फ्रॉम वन डीएनए देयर इज ऑलरेडी फॉर्म्ड द टू डॉटर डीएनए। ओके, सो दैट इज द ऑल अबाउट दिस प्रोसेस। सो इन द नेक्स्ट क्लास we will be going through the various other topics of this molecular biology. Clear? So for today up to this much. So very soon we will be meeting with the next another very interesting video. Till then, take care. Bye bye.